Yeah, students, in the last class, we have started the Rutherford's alpha particle scattering experiment. So again, we will continue from that experiment. First of all, we have to make the diagram and the elements of the diagram, that what operators that were used in this experiment. We have discussed about that. Rutherford's alpha particles scattering experiment. The experimental setup contains, first of all, lead cavity. In this lead cavity, there will be a radioactive source which will emit alpha particles. एक रेडियोएक्टिव सोर्स को इसके अंदर रखेंगे और वो रेडियोएक्टिव सोर्स क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा. So this is the radioactive source which is placed inside this cavity. And Geiger counter in this experiment, the radioactive source which is used is bismuth. Bismuth का यूज किया गया रेडियोएक्टिव सोर्स का, and it will emit alpha particle in all possible directions. But we are blocking all the alpha particle, leaving the particles which are moving in the straight line. So this will create alpha particles beam, or you can say that beam of alpha particles. तो ये हमने डिस्कस किया था. देखिए क्या क्या बता चुका हूँ वो भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार. So this is the beam of alpha particles which is incidenting on a gold foil. This gold foil is very thin foil which is having the thickness of 10 to the power minus 7 meter. जिसकी thickness 10 to the power minus 7 meter है, and it is composed of single layer of atoms, और ये single layer of atoms से बनी हुई है. And we have to block alpha particles which are moving in different directions. So we have to place their lead bricks. Lead is a metal which will absorb the alpha particles. Lead एक metal है जो alpha particles को क्या कर लेगा, absorb कर लेगा. न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम लोग कैडमियम का यूज करते हैं. हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम कैडमियम रोड्स का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स है, तो अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज किया जाता है लेड का. सो दिस इज दीज आर लेड ब्रिक्स एंड दिस इज लेड कैविटी. ये लेड कैविटी है जिसके अंदर हमने रेडियोएक्टिव सोर्स को रखा है. गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल के सामने हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा रखी है. दिस स्क्रीन is made up of zinc sulfide which will produce brightness. जो क्या प्रोड्यूस करेगी, जो ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगी जब इसके साथ क्या स्ट्राइक करेगा, जब इस पर कोई अल्फा पार्टिकल आकर के स्ट्राइक करेगा, देन इट विल प्रोड्यूस ब्राइटनेस. बट दिस ब्राइटनेस इज सो मिनिमल दैट यू हैव टू सी दिस ब्राइटनेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ये ब्राइटनेस इतनी कम होगी कि आपको एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखना पड़ेगा. So this screen is of zinc sulfide. And a detector were used to observe the brightness, that is called rotatable detector, because it can rotate on this screen, or you can say that it is a microscope which can rotate on the screen. ये एक माइक्रोस्कोप ही है जो स्क्रीन पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है. तो डिटेक्टर को यहाँ से हम लोग किसी भी पोजीशन पर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं स्क्रीन पर ब्राइटनेस देखने के लिए. ओके, तो ये इसका सेटअप है. इसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग. ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है विच इज passing straight. This is the original path of the alpha particle.
and after the scattering it can move in this direction also, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, and this is the scattering angle जिसको हम लोग थीटा से लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ एरोस बनाते हैं, it will show that most of the alpha particles passed straight, और कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आएंगे। So here I will write 1 out of 8,000 particles retraces its path. So this is about the diagram of the alpha particle scattering experiment. Okay, अब सुनिए, सबसे पहले कौन कौन इन्वॉल्व था इस एक्सपेरिमेंट में, उनके नाम लिखते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जिंक सल्फाइड्स। So first one is Ernest Rutherford. हैंस गीगर, वैसे तो इनका नाम जोहानेस गीगर था, लेकिन शॉर्ट में इनको हैंस गीगर के नाम से जाना जाता था। जोहानेस गीगर है वैसे इनका नेम। नेक्स्ट अर्नेस्ट मार्सटन। अर्नेस्ट मार्सटन ये न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ये एक्सपेरिमेंट के बारे में किसने सोचा, तो आंसर है रदरफोर्ड ने और हैंस गीगर ने, इन दोनों ने मिलकर के इसके बारे में सोचा था, लेकिन इन्होंने एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड को भी इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व किया। अच्छा, ये सब इसके बारे में कैसे सोचा गया, तो मैंने आपको जे थॉमसन का मॉडल बताया था जिसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, और वो जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसमें आपने ये पढ़ा था कि एक जो एटम होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, जैसे कि वाटरमेलन का रेडिश पार्ट है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें बीच बीच में रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो मॉडल था ये किसका मॉडल था, ये जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था। और वो मॉडल ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, जैसे कि उस मॉडल के अंदर ये प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने आपको, ड्रॉबैक्स बताई थी, जिसको हमने ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल बोला था। फर्स्ट ड्रॉबैक मैंने आपको ये एक्सप्लेन की थी दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। जो जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है वो स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो स्पेक्ट्रल लाइंस की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि हाइड्रोजन के अंदर से 4 कलर क्यों निकलते हैं और कैसे निकलते हैं, तो इसका कोई रीजन उस मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दूसरा उस मॉडल के थ्रू हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा सकते। अगर हम ऐसा मानते हैं कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है जिसमें सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल वापस आने चाहिए थे, लेकिन वो अल्फा पार्टिकल तो ज्यादातर स्ट्रेट पास हो रहे थे। इसका मतलब एक एटम के अंदर सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सो इट इज ए ड्रॉबैक। तो ये भी क्या हुई, ये भी एक ड्रॉबैक हुई। इसके बाद में तीसरा ड्रॉबैक सुनिए इसका। तीसरा ड्रॉबैक ये है दैट जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल डू नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या नहीं करता, वो न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि न्यूक्लियस क्या होता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस कहां पर होता है। अच्छा, इसके अलावा इट ऑल्सो डू नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है वो किसको एक्सप्लेन नहीं करता, वो ये भी नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहते हैं, कैसे रहते हैं। बस उन्होंने बताया कि उसके अंदर रहते हैं, रैंडमली रहते हैं, एट रैंडम रहते हैं, तो कोई लोकेशन उनकी पर्टिकुलर नहीं बता पाए वो। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक हम इसमें लिख सकते हैं, वो ड्रॉबैक ये होगी दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। जो जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि एटम इतना स्टेबल क्यों है, उसका क्या रीजन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे काम करते होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में किस फॉर्मूला से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कितना फोर्स काम करता है, तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी उनके पास। तो हमने बोला कि ये जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की क्या है, ड्रॉबैक्स है। तो मैंने आपको 5 ड्रॉबैक बताई है जे थॉमसन के मॉडल की।
तो रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर इतनी सारी ड्रॉबैक आ रही है तो वो मॉडल सही कैसे हो सकता है, तो एटम ऐसा नहीं होता होगा, इसीलिए वो सारी ड्रॉबैक आ रही है। तो रदरफोर्ड ने फिर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, बिस्मिथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो डिके होते हैं। डिके होने का मतलब है कि वो टूटते हैं छोटे एलिमेंट्स के अंदर। जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आंसर है हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। जैसे हीलियम की स्ट्रक्चर आपको पता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने इस हाइड्रोजन को गर्म कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल दिया। अगर इसके इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस बचा। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, He+2 से लिखते हैं। तो He+2 आयन को क्या बोला जाता है, He+2 आयन का मतलब क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ऐसा एटम, एटम तो क्या बोलेंगे उसको, फिर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो क्या बोला जाएगा, सिर्फ उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। तो He+2 ये हीलियम न्यूक्लियस है। और इसी हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो ये अल्फा पार्टिकल सब डायरेक्शंस में मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ये लेड कैविटी उन सब डायरेक्शन के अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो अल्फा पार्टिकल इधर जा रहे हैं वो इन लेड ब्रिक्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सिर्फ कौन से वाले बचेंगे, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये कॉलीमेटर बनाया। ये जो पूरा अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, लेड कैविटी लेड ब्रिक्स का जो अरेंजमेंट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉलीमेटर बोला जाता है। कॉलीमेटर का मतलब होता है जो क्या क्रिएट कर दे, अ बीम ऑफ पार्टिकल। और वो पार्टिकल कैसा ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉलीमेटर। इस कॉलीमेटर के थ्रू ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। और सामने हमने क्या लगा दी, सामने हमने गोल्ड फॉइल लगा दी। अब ये अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस करते हैं और स्ट्रेट पास होते हैं, कुछ इधर जाकर के स्ट्राइक करते हैं, कुछ इधर जाकर के स्ट्राइक करते हैं। अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सन, तीनों ने मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। और एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया तो देखिए क्या रिजल्ट है। इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बीम को यहाँ से स्टार्ट किया और गोल्ड फॉइल के थ्रू ये पास होते हैं। और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जाकर के स्ट्राइक करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द ब्राइटनेस यहाँ पर अपीयर होती है एट दिस प्लेस। तो माइक्रोस्कोप को इन्होंने यहाँ लगा करके देखा, अलग अलग पोजिशन पर रखा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही थी। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो ब्राइटनेस थी वो मोस्ट ऑफ द ब्राइटनेस यहाँ पर दिख रही थी। तो उस केस में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दीजिए, क्योंकि काफी टाइम से ऑलरेडी चल रहा था ये एक्सपेरिमेंट। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे वो पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास होकर के सामने जाकर के स्ट्राइक करते थे। और ये ऑब्जर्वेशन आ रही थी दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे पास हो रहे हैं, स्ट्रेट पास हो रहे हैं, गोल्ड फॉइल से सीधा निकल जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से कुछ समझ में नहीं आया, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। लेकिन इनका जो स्टूडेंट है अर्नेस्ट मार्सडन ने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। तो मार्सडन ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा, लेकिन रदरफोर्ड को इसके बारे में बताया नहीं। और उन्होंने इसके लिए एक टेबल बनाई, उस टेबल में लिखने शुरू किए ऑब्जर्वेशंस। अब उन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे इस एक्सपेरिमेंट के। सो हियर आई विल राइट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। So here we will write number of alpha particles, number of alpha particles, and here we will write scattering angle theta। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, स्कैटरिंग एंगल को लिखने वाले हैं कि कितने डिग्री पर स्कैटर हो रहा है। तो मार्सडन ने भी इसी तरह की एक टेबल बनाई और उस टेबल के अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिखी, उन ऑब्जर्वेशंस को सुनिए। सबसे पहली बात, इन्होंने माइक्रोस्कोप के यहाँ पर रखा और अप्रोक्सीमेटली इनका जो एक्सपेरिमेंट था हैंस गीगर और मार्सडन का, उसमें 8000 पार्टिकल्स थे। और ये एक्सपेरिमेंट काफी बार रिपीट किया गया, कभी गोल्ड फॉइल के साथ, कभी आयरन फॉइल के साथ, कभी एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। तो अलग अलग मेटल्स की फॉइल भी यूज की गई है। तो हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, किसी में 10,000, किसी में 12,000, किसी में 8,000 है। तो हम तो जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसा एक्सपेरिमेंट रहा होगा ये। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने ऐसा मान लिया कि टोटल 8000 पार्टिकल्स हैं। टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, टोटल 8000 पार्टिकल्स हैं, मतलब कि 8000 ऑब्जर्वेशंस इन्होंने देखी। तो माइक्रोस्कोप को इन्होंने यहाँ पर रखा और पार्टिकल्स को काउंट करना स्टार्ट किया। पार्टिकल्स को काउंट करना स्टार्ट किया तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन ये थी दैट
7,500 7,500 particles are scattering at less than 1 degree, scattering at less than 1 degree। तो 1 डिग्री से कम एंगल पर वो क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 0 डिग्री एंगल को बता रही है, तो एक अल्फा पार्टिकल इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, मतलब 1 डिग्री के बीच में ही ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। तो ये जो 1 डिग्री का 1 डिग्री का रीजन है इस स्क्रीन के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक ये जो 1 डिग्री का रीजन है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन यहां पर मिला। इसके बाद में सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्कैटरिंग एंगल 45 डिग्री, देखिए इस तरफ भी 45 डिग्री हो सकता है और इस तरफ भी 45 डिग्री हो सकता है। तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन से, इसका जो एक्चुअल पाथ है, ओरिजिनल पाथ से हम इसको क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे। सो द एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ एंड डिफ्लेक्टेड पाथ, तो एक्चुअल पाथ और डिफ्लेक्टेड पाथ में जो एंगल है उसी को क्या बोला जा रहा है, उसी को स्कैटरिंग एंगल बोला जाता है। तो ये पार्टिकल इस तरफ भी जा सकता है। So this is also angle of 45 degree. This is also an angle, scattering angle. तो ये वाला जो रीजन है, इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री, तो इस रीजन के अंदर, इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर इनको पार्टिकल्स मिले, कितने पार्टिकल्स, तो अप्रोक्सीमेटली 400 पार्टिकल्स, 400 पार्टिकल्स इन्होंने ऑब्जर्व किए, और वो ऑब्जर्वेशन कितने डिग्री के बीच में, 45 डिग्री। तो यहां से 1 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री और इधर से 1 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री, तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ रीजन को, ये रीजन और ये वाला रीजन, बीच का 1 डिग्री छोड़ दीजिए, वो ऑब्जर्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसके बारे में। तो अप्रोक्सीमेटली 400 पार्टिकल्स 45 डिग्री के एंगल पर स्कैटर हुए। अब कितने हो चुके हैं पार्टिकल्स, तो आंसर है 7,900 तो हो चुके हैं, बाकी कितने बचे, 100 पार्टिकल बचे। तो 100 पार्टिकल के अंदर से कुछ 90 पार्टिकल्स आपको कहाँ मिलेंगे, 90 डिग्री के एंगल तक स्कैटर होंगे। तो 90, 92 या 95 पार्टिकल्स ये इस इतने डिग्री पर स्कैटर होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। एक अल्फा पार्टिकल यहाँ आया, इधर मुड़ करके इस तरफ जा करके यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन थी। तो 45 से लेकर के 90, इधर से 45 से लेकर के ये 90 डिग्री, तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर इनको अप्रोक्सीमेटली 90 पार्टिकल्स मिले, बाकी के पार्टिकल बचे 10 पार्टिकल। तो 10 पार्टिकल्स में से कुछ 9 पार्टिकल्स इनको मिलेंगे मोर देन 90 डिग्री एंगल, मोर देन 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे कुछ इनको 8-9 पार्टिकल यहाँ पर मिले, लेकिन एक पार्टिकल ऐसा था जो रीट्रेस हो रहा था, रीबाउंड हो रहा था। देखिए ये वाला वो पार्टिकल है, दिस वन, इसको डार्क कर देते हैं, दिस पार्टिकल, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल ऐसा जाता है और इधर मुड़ करके वापस इस तरफ आ जाता है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये अपने पाथ को रीट्रेस कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल ऐसा गया और वापस आ गया, ये वापस आ गया वाली वही कंडीशन तो हो रही है। इस केस में ऐसा गया और इस तरफ मुड़ रहा है, इसका मतलब वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा पाया। तो हमें बस यही ऑब्जर्वेशन चाहिए थी कि वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके दूसरी तरफ ना जाए, वापिस आए। तो वापिस आए उसके लिए हम लोग इस टेबल में लिखते हैं कि एक पार्टिकल है जो कितने डिग्री पर है, जो है 180 डिग्री पर, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री। सो द लास्ट पार्टिकल इज वन पार्टिकल विच इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ, एक पार्टिकल है जो वापिस आ रहा है। तो ये टेबल मार्सडन ने बताई, और ये टेबल बनाने के बाद में वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास गए और उनको बोला कि देखिए सर, मैंने आपका एक्सपेरिमेंट ये कंटिन्यू रखा था और इस एक्सपेरिमेंट के ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो रदरफोर्ड काफी शार्प थे, उन्होंने सिर्फ इस चीज को पकड़ा कि एक पार्टिकल वापिस आ रहा है तो क्यों आ रहा होगा, एक पार्टिकल वापिस आ रहा है तो क्यों आ रहा होगा, उसका रीजन क्या है। अब उसके रीजन को इन्होंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया, उस डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको पार्टिकल्स के नंबर में नहीं लिखनी है, ये ऑब्जर्वेशंस आपको पार्टिकल्स का ऐसा नंबर नहीं बताना कि हाँ इतने पार्टिकल वापस आ गए, इतने पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, ऐसा नहीं बताना। आपको ये बताना है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मतलब कि 99.9%, 99 या 99% मान लीजिए, 99% पार्टिकल कैसा जा रहे हैं, स्ट्रेट पास हो रहे हैं। बाकी के 1% में से कुछ पार्टिकल 45 डिग्री 90 डिग्री पे स्कैटर हो रहे हैं, और सिर्फ एक पार्टिकल है जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। 1 आउट ऑफ 8,000 इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ, जो इस पाथ को रिट्रेस कर रहा है। अब ये जो सारा एक्सपेरिमेंट है, इसका जो भी ये ऑब्जर्वेशन आ रही है,
और इन ऑब्जर्वेशंस के एक्सप्लेनेशन को सुनिए। अब उसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया, वो डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। तो रदरफोर्ड ने एक डायग्राम से इसको बताने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने दिखाया एटम्स को। उन्होंने बोला कि शायद एटम ऐसा होता होगा, ये न्यूक्लियस और यहाँ पर ये एटम की क्या होंगी, ये एटम की ऑर्बिट्स होंगी। इसी तरह से ये नेक्स्ट एटम होगा, ये एटम की इधर ऑर्बिट्स होंगी, ये कंप्लीट ऑर्बिट ऊपर बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एटम होगा। तो उन्होंने ऐसा कंसीडर किया कि शायद एटम ऐसा होता होगा। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन सुनिए। ये पहला अल्फा पार्टिकल है विच इज पासिंग स्ट्रेट। ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अल्फा पार्टिकल सीधा क्यों जा रहा होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर के इस पर कोई रिपल्शन फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, ये इनकी रेंज से बाहर है। अगर रेंज से बाहर है तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, मतलब कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस के थ्रू जा रहे होंगे अल्फा पार्टिकल। दूसरा अल्फा पार्टिकल भी अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ही पास हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ही पास हो रहा है। सो दिस इज द सेकंड अल्फा पार्टिकल विच इज ऑल्सो पासिंग स्ट्रेट। थोड़ा बहुत डेविएशन हुआ, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। इसके बाद में थर्ड अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, जो न्यूक्लियस के और पास आ जाएगा। जो न्यूक्लियस के और पास आ जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा। देखिए ये न्यूक्लियस है, अगर हम इसको गोल्ड फॉइल बोल रहे हैं तो गोल्ड फॉइल में तो 79 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, तो इसमें 79 प्रोटॉन्स होंगे। तो 79 प्रोटॉन मिलकर के 2 प्रोटॉन को रिपेल करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था हीलियम न्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो अल्फा पार्टिकल में बेसिकली क्या आ रहे हैं, 2 प्रोटॉन आ रहे हैं। तो 79 प्रोटॉन मिलकर के इन 2 प्रोटॉन को रिपेल करते हैं। रिपल्शन के कारण ये इतने डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर ऐसा स्कैटर हो जाता है। इसके बाद में ये फोर्थ अल्फा पार्टिकल आ रहा है जो इसके और पास में से जाएगा, तो इसका स्कैटरिंग एंगल इससे ज्यादा हो जाएगा 45 डिग्री से। सो दिस इज द फोर्थ अल्फा पार्टिकल विच इज पासिंग नियर बाय द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में से जा रहा है। 79 प्रोटॉन्स, दिस इज द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के और पास में से जा रहा है तो उसका स्कैटरिंग एंगल थोड़ा बड़ा हो गया, तो इस तरह से ये रिपेल होकर के इधर चला जाता है। हो सकता है कि ये वाला न्यूक्लियस भी इसको रिपेल कर दे, फिर स्कैटरिंग एंगल बदल जाए। तो यहां पर ये स्कैटरिंग हो रही है इसकी। अब फिफ्थ पार्टिकल विच इज रीट्रेसिंग इट्स पाथ। तो ये जो फिफ्थ पार्टिकल है ये ऐसा स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन सामने न्यूक्लियस आ गया। तो ये 2 प्रोटॉन इस तरफ आगे बढ़ रहे थे, सामने 79 प्रोटॉन है, सामने वॉल आ गई। अब ये बॉल जाकर के जब वॉल से हिट करेगी तो क्या होगा, तो बॉल वापस आएगी। तो यही यहाँ पर हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल, ये 2 प्रोटॉन जाकर के जब 79 प्रोटॉन के पास में पहुंचते हैं तो क्या होता है, ये 79 प्रोटॉन मिलकर के इसको रिपेल करते हैं तो इसको रेस्ट में लाते हैं। रेस्ट में लाने के बाद फिर इसको वापस इसी पाथ पे भेज देते हैं रिपेल करके। तो देखो यहां से ही कैलकुलेशन होगी सारी की सारी। अल्फा पार्टिकल के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि इसके पास जो वेलोसिटी थी उसके कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। तो जब ये अल्फा पार्टिकल ऐसा ट्रेवल करता हुआ आ रहा था, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जा रही थी, लास्ट में जाकर के ये रेस्ट में आ गया तो इसकी स्पीड 0 हो गई, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जरूर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण इसके और इसके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है। इस फिक्स डिस्टेंस के कारण यहाँ पर इस पर रिपल्शन फोर्स लगता है। रिपल्शन फोर्स से क्या होता है, ये पार्टिकल वापस पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है जब ये कंप्लीटली रेस्ट में आ जाता है, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू होती है और ये वापस चला जाता है। तो ये वो पार्टिकल है जो इसको रीट्रेस कर रहा है। सिक्स्थ पार्टिकल which is passing nearby the nucleus, then it will reflect back in this direction. seventh particle which is far from the nucleus, जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, इसका ये स्कैटरिंग हो जाएगा। एंड द एथ पार्टिकल which is not in the range of any nucleus, it will pass straight. तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट ही पास होंगे, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री, तो ये डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। So most of the alpha particles are passing straight, but only one particle is retracing its path. अब देखिए अगर मैं इस पूरे सिस्टम को अगर जे थॉमसन के मॉडल से एक्सप्लेन करना चाहूं तो कर सकते हैं क्या,
तो आंसर है नो। आप इस सिस्टम को जेजे थॉमसन के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जेजे थॉमसन ने क्या बोला था? जेजे थॉमसन ने बोला था कि एटम इज ए चार्ज ऑफ पॉजिटिव, एटम इज ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एटम इज ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने बोला कि सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं। तो पहला अल्फा पार्टिकल आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, वापस आ जाएगा। दूसरा अल्फा पार्टिकल आएगा, सामने पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा, वापस आ जाएगा। इधर जाएगा, वापस आएगा। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे होंगे वो सारे अल्फा पार्टिकल तो वापस आने चाहिए फिर। लेकिन इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर वो बोलते हैं कि सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज होता तो जितने भी अल्फा पार्टिकल सामने जा रहे थे वो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करते। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन तो नहीं आ रही इस एक्सपेरिमेंट में। तो क्लियर कट यहां से पता लगता है दैट द जेजे थॉमसन का जो मॉडल था, मॉडल ऑफ एटम, दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। वो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जेजे थॉमसन का जो मॉडल है वो एटम की स्ट्रक्चर को बताने में असफल है, फेल्ड है वो। ओके, अब ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन यहीं से होंगी। इसके बाद में अच्छा, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या बताई मैंने आपको, ऑब्जर्वेशंस के बारे में सुन लीजिए। पहली ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। सेकंड, 1 आउट ऑफ 8000, 1 आउट ऑफ 8000 रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब है अपने पाथ पे वापस आ जाता है। एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जेजे थॉमसन का मॉडल फेल हो जाता है इस थ्योरी को समझाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बहुत स्कैटरिंग एंगल से स्कैटर होंगे, ओनली अबाउट 0.14%, ओनली अबाउट 0.14% particles, alpha particles scatter more than, scatter at more than 1 degree। 0.14%, वही मैंने आपको बोला था अप्रोक्सीमेटली 99% हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 99% पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वो तो स्ट्रेट पास हो जाएंगे 99.9%। ये जो 0.1% बच रहा है, 99.9% तो स्ट्रेट पास हो रहे हैं। ये जो 0.1% है, 0.1% पार्टिकल यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। कौन कौन से? सेकंड, थर्ड, सेकंड भी स्ट्रेट ही पास हो रहा है, ये देखिए, ये भी स्ट्रेट जा रहा है, सेकंड पार्टिकल भी, इसको भी काउंट नहीं कर रहे। इसमें कौन कौन से पार्टिकल आएंगे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये पार्टिकल्स आएंगे। तो इन पार्टिकल्स की बात की जा रही है जो इतने 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर हो गए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन होगी। और इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन और इसमें लिख देते हैं, एंड दैट ऑब्जर्वेशन इज ए ग्राफ। एक ग्राफ बनाया गया किसमें? ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, उस टेबल से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन scattering angle theta and number of particles। तो उस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। Here we will write number of particles and theta is the scattering angle। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, या 20 डिग्री के ले लेते हैं। 20, 40 डिग्री, 60, 80, 100,
120, 140, 160 and 180 डिग्री। दिस इज द स्कैटरिंग एंगल थीटा, ये स्कैटरिंग एंगल है थीटा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसको हम लोग 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 इस तरह से लिखना पड़ेगा इसमें। टेन टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 4, 5 एंड 6। चलिए अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 पार्टिकल्स हैं जो लेस देन 1 डिग्री पे स्कैटर हो रहे हैं। तो 0 और 20 के बीच में यहाँ पर 1 डिग्री आएगा, तो 1 डिग्री के लिए ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। तो 1 डिग्री पर इतने पार्टिकल 10 टू द पावर 6 के आसपास जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कि 10 लाख पार्टिकल हो गए, 1 मिलियन पार्टिकल्स हो गए। तो इतने पार्टिकल तो कैसा जा रहे हैं, स्ट्रेट पास हो रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन उस एक्सपेरिमेंट में की है जिसमें पार्टिकल्स का नंबर काफी लार्ज है। इसके बाद में ये ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ आएगा और पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं कि 45 डिग्री पर कितने पार्टिकल्स हैं, तो 10 टू द पावर 3 मतलब कि 1000 पार्टिकल्स। अगर 40 और 60 के बीच में हम लोग 50 डिग्री या 45 डिग्री का कंसिडरेशन लेते हैं, तो मान लीजिए ये 50 डिग्री का कंसिडरेशन है, ये 50 डिग्री का है और यहाँ पर 10 टू द पावर 3 है। 10 टू द पावर 3 से भी नीचे जा रही थोड़ी लाइन, अब तो अप्रोक्सीमेटली 900 पार्टिकल्स हैं जो 45 डिग्री एंगल पर स्कैटर हो रहे हैं। उसके बाद में अगर हम 100 डिग्री एंगल लेते हैं, 100 डिग्री या 90 डिग्री एंगल लेते हैं, तो 90 डिग्री एंगल पर देखिए ये कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, 10 टू द पावर 2 मतलब कि लगभग 100 पार्टिकल। तो 90 डिग्री एंगल पर कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 पार्टिकल्स। इसके बाद में नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी ले सकते हैं, ये 50 डिग्री पर लिया था हमने ये वाला ऑब्जर्वेशन। दिस इज द ऑब्जर्वेशन एट 50 डिग्री, 1000 पार्टिकल्स 90 डिग्री पर 100 पार्टिकल हैं। अगर हम इससे भी आगे जाते हैं 140 डिग्री या 150 डिग्री पे, तो ये 150 डिग्री हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो 150 डिग्री पे देखिए कितने पार्टिकल्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 पार्टिकल्स, 10 टू द पावर 1 आ रहा है। और 180 डिग्री पर ये लाइन यहाँ पर आकर के मिलेगी, तो अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 पार्टिकल्स होंगे। सो 180 डिग्री ओनली 1 पार्टिकल। तो ये ग्राफ इसमें बनाया जा सकता है जिसमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड दिस इज द स्कैटरिंग एंगल। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे। तो अगर हम 90 डिग्री पे कंसीडर करते हैं तो 90 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली 100 पार्टिकल मिलते हैं। अगर 150 डिग्री पे कंसीडर कर रहे हैं तो 10 टू द पावर 1 पार्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब कि सिर्फ 10 पार्टिकल हैं। और 180 डिग्री पर 1 या 2 पार्टिकल्स होंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन थे। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर क्या लिखे जाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट लिखे जाएंगे। अब अटेंडेंस शीट के बारे में बात करते हैं।